Welcome to the IVM Podcast Network. Hi, this is Amit Doshi, and I wanted to thank each and every one of our listeners. It's been 2 years since I founded IVM, and it's been an amazing 2 years. We wanted to learn a little bit more about who is listening to our shows, and so we put together a short survey. The survey is anonymous, and we aren't going to be collecting any personal information. I would really appreciate it if you could take a couple of minutes out of your day and go to ivmpodcast.com/survey and fill it out. Thanks, and please keep listening. You're listening to TFG Fantasy Cricket. Hey guys, welcome to a new episode of TFG Fantasy Cricket Podcast. We are back with West Indies versus Pakistan, second T20. Yes. First wala was a low-scoring thing. Today we are playing at Port of Spain. It was not a low-scoring match. West Indies just don't have the class to negotiate Pakistan's world-class bowling. It's as simple as that. Okay, so today what we Until the time you don't get the right guys at the top of the order, I don't care what is happening in the West Indies board. If there is no Gale, But there was Rendell Siemens, there was Pollard. All these guys are okay, but who won them the World Cup twice? It's a complete team effort. And when you don't have guys like Darren Sammy, you don't have people like Andre Russell, you don't have people like Chris Gale, forget about it. Okay. 1-0 kya 4-0 jayega ye log. Of course, Pakistan is known for a different set of talent. So yes. Okay. So Port of Spain में match है. Weather is quite normal. Weather is sunny. बारिश के chances बहुत ही कम है. Okay. तो मेरे ख्याल में पूरे 40 ओवर हो जाने चाहिए. Okay. So no holds barred. You can openly pick teams. Okay. Yes. If you're looking at the portal, एक change हमें दिख रहा है. Kamran Akmal has been put into the batsman's category. So थोड़ा सा और difficult हो जाता है to pick batsmen. I think you'll go with Sarfaraz as a keeper. सरफराज नहीं, आई वुड पिक दैट वेस्ट इंडियन ओपनर चैडविक वॉल्टन, क्योंकि ओपन करता है, ठीक ठाक शॉट मारता है, डोमेस्टिक में अच्छी फॉर्म रखी है, 100 मारी थी 2 हफ्ते पहले. वी नीड टू पिक, दैट इज द बिगेस्ट पॉइंट रादर. 4 वेस्ट इंडियन क्रिकेटर होने हैं तो हम उसे लेंगे. और रही सरफराज की बात, निखिल, अगर आपके पास बाबर हो, शोएब मलिक हो, एंड मोहम्मद हफीज, अहमद शहजाद, ये सब बैट्समैन के बाद में आता है सरफराज. और जैसी वेस्ट इंडीज की बॉलिंग चल रही है, आप कितनी उम्मीद रखते हो कि सरफराज आएगा और 20-25 मारेगा? हम ये नहीं कह रहे हैं कि इट वोंट हैपन, बट चांसेस आर दैट ऑब्वियसली कामरान अकमल इज ऑल्सो देयर एट द टॉप. सो वी think first guy who's going to get more exposure is Chadwick Walton, so we pick him. Okay, but the main question, last time हमने सुनील नरेन लिया, उसको कैप्टन बना, he went wicketless. How many matches ऐसे कभी हुआ है? but मेरे ख्याल में लोगों को जाकर देखना चाहिए कि सुनील नरेन का क्या क्लास है, वो विकेट्स कैसे लेता है, कब लेता है, क्यों लेता है. थ्रू आउट द PSL हमने उसे कैप्टन बनाया था. अरे PSL छोड़ो, बिग बैश में भी हमने ऑस्ट्रेलिया में उसको कैप्टन बनाया था. नॉट ओनली विद द बॉल बट विद द बैट ऑल्सो. हालांकि जो बैट से आती है वो सारे बोनस रन है. वी नॉर्मली डोंट एक्सपेक्ट दैट, बट look, his number one job is to pick wickets, and he did that in the Big Bash and the PSL. So there was no logic, for not keeping him as the captain. And the conditions in the West Indies, like we saw, somebody like a Shadab Khan coming and turning the ball, picking wickets, Imad Wasim picking wickets. तो नरेन क्यों नहीं लेगा खुद के घर में? And हम ये नहीं कह रहे कि पाकिस्तान, they also can crumble to good spin bowling, and in a T20 match these things can happen. So that's why we picked him. I feel since the target was so small, they decided to play. There is no doubt about it. I mean, we know the class he has, and then we get messages like, सुनील नरेन को कैप्टन क्यों बनाए, कार्लोस ब्राथवाइट को क्यों नहीं बनाए? Guys, if you're sure of making Carlos Brathwaite as captain, you should play Grand League. You should always play Grand League. And मतलब जो रियल लीग्स में कार्लोस ब्राथवेट को, वो तो चल गया, उस दिन मटका था. आप मेरे को बताओ लास्ट 10 मैचेस में उसने कितना विकेट लिया है? अगर 5 से ज्यादा लिया ना तो मैं बंद कर दूंगा करना. ठीक है, अगर उसने, आप 20 मैचेस ले लो, अरे 5-6 तो मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, 20 मैचेस में 150 से ज्यादा बनाया क्या, मेरे को बताओ. सो दैट इज अ मटका लीग. Pick Carlos Brathwaite again and see what he is going to do today. We won't pick him today also because for me, एक दिन में आकर तो बंदर भी सिकंदर बन जाता है, लेकिन जो क्लास होता है ना वो तो हर दिन दिखाई देता है. तो ये भूल जाओ बात को. We'll stick to Sunil Narine. Yes. He might, now like you said, you have a good point. उनको पता था कि 80 निकालने हैं, 100 बॉल है, तो हम इसे विकेट क्यों दें? So that, but अगर वेस्ट इंडीज फर्स्ट बॉलिंग करती है एंड इफ नरेन कम्स ऑन टू बॉल, आपको तो एक्सेलरेशन चाहिए, तब आप उसे 4 पर ओवर 3 पर ओवर नहीं खेलोगे, तब आएगा विकेट टेकिंग अपॉर्चुनिटी.
But I think Samuel Badri also will have a big role. The biggest plus is his ability to control with the new ball in the power play. Yeah. And वो विकेट लेता ही है. लास्ट मैच में भी उसने विकेट लिया था कामरान अकमल का. सो ही इज समबडी हु इज गोइंग टू बोल 4 ऑन द बाउंस एंड ही इज गोइंग टू पिक विकेट्स. सो वी पिक हिम एज वेल. बाकी बॉलिंग केसरिक विलियम्स है, जेरोम टेलर है. So who are the 4 West Indies you're trying to pick? Only 2 bowlers जैसे मैंने आपको बताया, नरेन एंड बद्री. उसके बाद में कीपर में बोला था चैडविक वॉल्टन. अब रही बैट्समैन ऑलराउंडर कैटेगरी. ऑलराउंडर में ये बहुत हेराफेरी हो चुका है. पोलार्ड हैज गॉन इनटू द बैट्समैन कैटेगरी. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो बॉलिंग नहीं करेगा. एनी मोमेंट ही कैन बोल. Marlon Samuels, in my opinion, has turned out to be a big flop. I don't know why he's struggling. और उसको ऑलराउंडर में रखा है. वो तो बॉलिंग ही नहीं कर रहा काफी टाइमों से. तो मैं ये नहीं जानता कि कब करेगा और क्या स्ट्रैटेजी है उनकी. मैं नहीं लूंगा उसे. आई माइट पिक दैट गाय इवन लुइस बिकॉज नॉट अ बिग फैन बट बिकॉज ही ओपन्स द बैटिंग. शॉटे मारता है. 20 ओवर का फॉर्मेट है. पहले 5 ओवर. जेसन होल्डर अगेन यार, इट्स द सेम थिंग. जेसन होल्डर. Interesting you say this. When we were playing the England West Indies ODI, तुमने मेरे को बोला होल्डर क्यों ले रहे हो. मैंने कहा होल्डर को लेना है. वनडे अलग है, T20 अलग है. T20 में वो हर बार 4 ओवर भी नहीं डालता, वो पिट जाता है. बैटिंग भी नीचे आता है. तो भरोसे वाले प्लेयर लेने चाहिए निखिल. देखो आप कभी भी अगर फैंटेसी खेलते हो, आप एक मैच के नजरिए से नहीं देखना उसको. यू हैव टू सी इफ इट्स अ सीरीज ऑफ 5, ऑल्दो इट्स अ डेली रिजल्ट, बट यू हैव टू सी कंसिस्टेंसी. यू कैन नॉट बी प्लेइंग लाइक चलो मेरा आज इक्का ब्राथवेट है, कल इक्का सैमुअल्स है. ऐसा नहीं होता. तो कल आप मेरे को बोल रहे हो रसेल और ब्रावो आएगा तो उसको आप लेंगे नहीं. ऐसा नहीं हो सकता ना. तो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड. एंड व्हाट अबाउट शादाब खान? बहुत जबरदस्त बॉलिंग की थी. सो ही इज ऑब्वियसली दी PSL. सारे लोग जानते होंगे अभी तक. तो ही प्लेड इन द PSL. ही डिड वेरी वेल. एंड it's interesting. He played with so many Pakistani cricketers, West Indian cricketers in the PSL. Same style, same bowling. जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है. यंगस्टर है, सेम बॉलिंग करता है और विकेटें मिलती है. अच्छा स्पिन कर रहा था. एंड ही विल कम इन चीप. दुनिया लेने वाली है. क्योंकि अगर कोई इतनी अच्छी बॉलिंग करता है एंड वेस्ट इंडीज इज स्ट्रगलिंग विद स्पिन, पिक हिम. इमाद वासिम टू कैन नॉट बी लेफ्ट आउट बिकॉज इन T20s he can also open. And he was the highest wicket taker when these two teams last played in the UAE. You remember that series, Nikhil? He's done very well in the PSL, so obviously we pick him. अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ आने वाली है. तनवीर, हसन अली, वाहब रियाज, किसको छोड़ोगे? आप बताओ मेरे को, किसको छोड़ोगे? Okay, नहीं. Yeah, you can't take a. And अगर आप सबको लेते हो, which means you're playing with 6 Pakistani bowlers, which means you'll have to pick 4 West Indian batsmen. Doesn't sound logical, na? So this is what it is. I would pick Hasan Ali because हर मैच में विकेट ले. Not to say Wahab and Tanveer they don't pick, but Tanveer last match was handled very well. Last ball में उसको विकेट मिली थी. Riyaz has this habit of spraying the ball around. Hasan Ali has good control. New ball के साथ अच्छा डालता है और slog overs में भी अच्छा डालता है. And he's in good form, so we pick him. Okay. Batsman, it's very straightforward. Kamran, शोएब मलिक. तुम शोएब मलिक के फैन नहीं हो लेकिन सिखाता है, सबको सबक सिखाता है वो. शोएब मलिक और एक और बैट्समैन. हु वाज दैट बैट्समैन? शोएब मलिक, बाबर आजम. कैसे भूल सकते हैं बाबर आजम? ओह माय गॉड, नो अहमद शहजाद. नहीं ले सकता भाई. मैं जगह नहीं है मेरे पास. एक तो 7 प्लेयर की लिमिटेशन है. अब किसको हटाओगे आप मेरे को बताओ. बाबर, कामरान जो ओपन कर रहा है. But there is a threat if Pakistan bats first and 50 for no loss in 6 overs. हम पीछे आ सकते हैं. हम पीछे आ सकते हैं. ये तो ऑप्शन सामने ओपन है. ये पॉसिबिलिटी है. आई एम नॉट डिनाइंग दैट. बट टेल मी हु विल बी सैक्रिफाइस्ड. कैन यू ड्रॉप Babar, Shoaib, 2, 3 is Kamran, 4 is Imad, 5 is Shadab Khan, 6 and 7 obviously 2 pacers. Whom do you drop? It's simple. आप मुझे बताओगे चलो मैं आज शोएब मलिक नहीं लेता, मैं शहजाद लूंगा. चल जाएगा शायद. शहजाद माइट स्कोर 25, मलिक माइट स्कोर 5. आप जीत जाओगे. लेकिन आर यू रेडी टू टेक अ चांस? मैं तो इतना बड़ा चांस नहीं लेता. मैं शोएब मलिक को छोड़कर शहजाद नहीं लेता. अगर ये कोई हांगकांग वाली टीम होती तो मैं शायद सोच लेता. Okay. तो आई जस्ट फील बेस्ड ऑन क्लास, बेस्ड ऑन फॉर्म,
I would pick Shoaib Malik ahead of Shehzad. And अगर शहजाद को स्कोर करनी है, चलो ठीक है, बैड लक होता है. Okay. Captain, vice captain? बाबर. Okay. And Kamran Akmal. Surprised. Yeah. Kamran Akmal के बारे में I thought you will stick to Sunil Narine. Yes, it's a good call. वैसे मैं आपको बता दूं, उस दिन भी he came after Kieron Pollard to bat. नंबर 6 पे आया था बंदा. एंड कार्लोस ब्राथवेट एंड होल्डर सेड नहीं, आप जाओ, आप आजकल बैट्समैन बन चुके हैं, आप जाओ. अरे वो ओपन करता है बिग बैश. ओपन करता है बिग बैश में. आप देखो कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए भी ओपन करने वाला है वो. सो ऑब्वियसली see the reason why I'm saying why he should be picked as a vice captain is because जैसे मैंने कहा लास्ट मैच में टोटली इतना ये था कि दे प्लेड हिम वेरी सेफली. इफ पाकिस्तान बैट्स फर्स्ट, इट गिव्स हिम एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर दैट स्लॉगिंग जो होगा. स्पेशली दैट वो जो 15 से 20 ओवर जो पीरियड आता है ना, वहां पे उसे मारने जाएंगे तो विकेट यहाँ वहां हवे में. एंड देयर योर पॉइंट ऑफ अहमद शहजाद को नहीं पिक करना है विल प्रूव राइट, बिकॉज इवन नरेन कैन. आई कंप्लीटली एग्री. सो यस, पीपल लिसनिंग, ही हैज मेड अ गुड पॉइंट. तो नरेन का एक ऑप्शन आप हमेशा खुला रखना. कैप्टन ऑब्वियसली इज गोइंग टू बी Babar Azam, there is no doubt about it. Vice captain choice, we'll take a call, but obviously you can go to our website and read our column. Yes. We'll give a detailed logic as to why we are picking. That's all. Guys, for the team, you need to log on to our website, thefangarage.com. You can connect us via As Twitter. of now, while recording, we haven't received any news, any updates on the injury. Okay. Let me make it very clear. नहीं तो कल एक ने लिखा था कि आपने मेंडिस को क्यों नहीं लिया. हमने मेंडिस, सो बीच में डिक्वेला की इंजरी रिपोर्ट आई थी. वी हैड टू चेंज द टीम. वी पिक्ड मेंडिस एंड we tweeted the correction. Somebody obviously didn't read that and he or she lost. So I mean, this is what you have to do. Like you understand, इंजरीज कभी भी होता है. इमीडिएटली जैसे हमें पता चलता है, we'll convey it to you. For that, follow our Twitter page, TFG Fantasy 11. And the Facebook Fantasy Pandit. यहाँ पे हमारे अपडेट्स कंटिन्यूस रहते हैं. सो वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी. You can listen to our podcast on IndusVox Media, Audioboom, SoundCloud, iTunes, and definitely on YouTube. Subscribe, share, like, and comment, and do download this app, IVM Podcast, on Android and iOS. Till then, take care. Bye-bye. Hey man, just help me out, man. I need some podcast, man. I haven't had a fix in a week. Just need some. Don't you worry about it. I got podcasts galore for you, man. Just go to ivmpodcast.com. You can also find us on Facebook, Twitter, and Instagram. Thanks, man. I'm gonna check it out.